So up till now we have seen introduction of PHP, features, sample code, syntax, conditions and loops in PHP, how to create a different types of function and call the function, string manipulation operation, form handling using get and post, different kinds of arrays like indexed, multidimensional and associative arrays, and the different function that you can perform on array. And today in our practical session we have seen the MySQL with PHP. Only the point which is remaining from PHP is cookies and session. So in your third unit itself, you have also studied what is mean by session management and types of session management and what is cookies. So we also see what is a cookie and session in case of PHP. So can anybody first tell me anything that you know about cookies and session? If anyone want to like explain something, so I will be happy. Hello. Yes. Anyone want to explain anything about cookies and session? Okay, no one. So cookie is nothing but it is oftenly used to identify a user. Mostly आप देखो कि जब आप e-commerce की कोई वेबसाइट यूज करते हो जैसे Amazon है, आपने अगर Amazon का ऐप डाउनलोड किया रहेगा, ओके, सो दैट इज योर क्लाइंट साइट. आपके साइड में जो दिखता है आपको सिर्फ आपका ही डेटा दिखता है और हर यूजर का डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? Amazon के मेन वेबसाइट पे स्टोर होता है. तो जब भी आप कुकीज सॉरी कुकीज नहीं, जब भी आप ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट यूज करते हो और आप ऐड टू कार्ट करते हो, कोई कोई आइटम्स आपको जो अच्छे लगते हैं उसको ऐड टू कार्ट करते जाते हो, ओके. बाद में आपने सपोज लॉग आउट भी कर दिया एंड अगेन व्हेन यू लॉग इन, तो भी आपको क्या होगा कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी जो आपने ऐड टू कार्ट करके रखा होगा, वो फिर भी आपको वहाँ पे क्या दिखेगी? You will find out all that information. Okay. So that is how the information about a user is stored at client side itself. So it's called as a cookie. या फिर आपके वेब ब्राउजर में काफी बार आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड, काफी बार आप देखो यूजर नेम पासवर्ड पूछते हो और वो ब्राउजर आपको पूछता है डू यू वांट टू सेव दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड. आपने जैसे ओके किया तो नेक्स्ट टाइम जैसे आप वापस वो वेबसाइट ओपन करते हो तो यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑटोमेटिक ब्राउजर क्या करता है वहां पे फिल कर देता है, autofill जिसको हम बोलते हैं. So where exactly this information is stored? So this all this information is stored at your machine मशीन ब्राउजर में कुकीज में इसको स्टोर किया जाता है. तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है. और एक इंफॉर्मेशन जैसे एग्जांपल मैंने अगर कोई वेबसाइट पहले ओपन करके रखी भावना खिमसरा .wordpress की, तो जैसे मैं खाली PHP प्रेस करूंगी तो आगे को ऑटोमेटिक उसने क्या कर दिया, मुझे प्रोवाइड करके दे दिया. So whatever the you are just doing with a web browser, many of the information it gets stored on your local machine and that is stored at your cookies. So cookie is often used to identify a user or its information. A cookie is a small file that server embeds on user's computer. Each time the same computer requests a page with a browser, it will send the cookie to. With PHP, you can both create and retrieve cookie values. PHP से आप cookies को create भी कर सकते हो and cookies की values को set कर सकते हो as well as retrieve कर सकते हो. Okay, so how to set the cookies or how to first is how to create the cookies. So cookies are created just by very easy function. Function name is set cookie function. In this function, there are some parameters that you have to pass. Like parameters are the name of cookie or name of user that you want to use, its value, when it is going to expire. जब कोई cookies set होती है तो आपको लग रहा है कि 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए. So you can also set the expire time, the path where you want to store this cookies, then domain, the type of security. और सिर्फ अगर आपको लग रहा है कि HTTP प्रोटोकॉल से ओपन होने वाली जो वेबसाइट है उसके लिए कुकीज क्रिएट होना चाहिए, उसके अलावा बाकी कोई नहीं. सो यू कैन सेट अप HTTP ओनली. सो दीज आर द पैरामीटर. इसमें नेम पैरामीटर जो है ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है. ऑल अदर पैरामीटर्स आर ऑप्शनल. ये सब ऑप्शनल पैरामीटर है.
So we'll see a simple example how to create a cookie. So जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया set cookie, cookie का कोई भी एक नाम दे दिया, तो जैसे मैंने name as it is parameter लिया है कि name of cookie, cookie का नाम हमने डाल दिया है, कोई एक नाम डाल दो, जैसे C, जैसे यहाँ पे मैंने अमित डाला है, एंड यू हैव टू सेट द टाइम। तो यहाँ पे टाइम जो है वो हम लोगों ने सेट किया हुआ है कि 30 डेज के बाद ऑटोमेटिक ये कुकी एक्सपायर होना चाहिए। तो 30 डेज के लिए हमने 30 ए लिया है, और 1 डे का जो कैलकुलेशन है तो ये सेकेंड्स में होता है, टाइम जो है सेकेंड में देना पड़ता है। सो इफ यू सी 24 आवर्स इनटू 60 मिनट इनटू 60 सेकेंड, सो टोटल सेकेंड्स जो होते हैं 1 डे के, दैट इज 86,400 सेकेंड। तो ये 1 डे के सेकेंड हो गए, आपको 30 डेज के लिए चाहिए, इसके लिए मैंने इंटू 30 कर दिया है। सो दिस इज सेट टू 1 मंथ। 1 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली ये जो कुकी सेट हुई थी ये क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। दैट्स इट। सो दिस हाउ यू कैन सेट अ कुकी। कुकी सेट होने का जब भी आपको उसकी वैल्यू को रिट्रीव करना है या फिर प्रिंट करना है, सो वेरी सिंपल, हियर वी हैव टू फर्स्ट चेक आउट इफ इज सेट डॉलर कुकी नेम। जैसे कुकी के लिए हमने जो नेम था वो एज इट इज सिंपल नेम ही रखा हुआ है, तो ये नाम का कुकी ऑलरेडी सेट है या एक्सपायर हुआ है वो हमने चेक किया। अगर सेट है देन उस नेम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर रहेगी कुकी की वो हमने एक वेरिएबल में डाल दी, और वो वेरिएबल को यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रिंट किया है, दैट्स इट। और अगर उसको कुकी जो सेट है वो नहीं मिलता है तो एल्स में जाके बोलेगा that cookie is not set. So this is to set the cookie, this is to retrieve the value of or to print the value of cookies. Now whenever you want to modify the cookies information, again you have to use a set cookie function, और जो भी values आपको changes करनी वो आप change कर सकते हो। And last one is how to delete a cookies. So cookies को delete करना है तो again set cookie, जो भी यूजर नेम आपने यूज किया रहेगा वो डालो, उसकी वैल्यू ब्लैंक कर दो, और टाइम को 1 आवर माइनस पे सेट कर दो। जो भी टाइम सेट रहेगा करंट टाइम माइनस 1 आवर। 1 आवर मतलब हमारे कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड। तो 1 आवर बिफोर हमने सेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो भी कुकीज में जो भी वैल्यूज रहेगी वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसके लिए कोई अलग रेडीमेड फंक्शन नहीं है। सी जस्ट बाय यूजिंग सेट कुकी फंक्शन यू कैन क्रिएट अ कुकी, you can update or modify the cookie value as well as you can also delete the values of cookies. तो सेम फंक्शन से हम तीनों चीजें कर सकते हैं। Now apart from cookies there is a one more concept which is called as the session. तो exactly what is difference between cookies and session? Cookies जो होता है ये यूजर के मशीन पे क्लाइंट साइड में स्टोर होता है, but sessions are stored at server side, client as well as server side, दोनों मशीन पे स्टोर होता है, लेकिन cookies ये सिर्फ क्लाइंट मशीन पे होता है। So the security is very less in case of cookies and security is very more in case of your sessions. So more security provide करता है, plus for cookies the size, whatever the information you want to store in cookies, it have a limited size of only 4 kilobytes of data. But in case of session there is no limit, you can store like huge amount of data also in a session. So this is mainly the difference between cookies and session. So when you want to when the server want that he has to store the information about user, but with more security and a huge amount of data he want to store, then instead of cookies he is going to use a session that time. A session is a way to store information in variable to be used across multiple pages. जैसे एग्जांपल ले लो, आप काफी बार अपने जो फर्स्ट ईयर में आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया रहेगा कोई, ओके, तो जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम को यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हो तो एक टाइमर सेट हो जाता है। जैसे अगर 30 मिनट के एग्जाम है तो 30 मिनट दिखते हैं, बाद में 29 मिनट, 28 मिनट, आप कोई भी क्वेश्चन पे जाओ, अगर सपोज 30 क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन पे जाओ, कोई भी पेज पे जाओ, लेकिन टाइमर की इंफॉर्मेशन जो है ये ऑटोमेटिक हर पेज पे अपडेट होते रहती है। सो दैट वैल्यू इज across the multiple pages. अगेन अगर आपका यूजर नेम दिख रहा है ऊपर प्रोफाइल में, अगर आपका फोटो दिख रहा है, आपका यूजर नेम दिख रहा है, तो आप कोई भी क्वेश्चन पे कोई भी पेज पे जाओ, स्टिल दैट योर नेम
your photo and some basic information you will find out almost on every pages until you log out. तो ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर करता है वो, आइदर इन अ कुकीज और आइदर इन अ सेशन, वहाँ पे स्टोर किया जाता है. So when you want to pass some information to the multiple across multiple pages, so you can use it. Unlike a cookie, the information is not stored on user computer. So in session, it gets stored at a server side. When you work with an application, you open it, do some changes, and then you close it. This is much like a session. The computer knows who you are. It knows when you start the application and when you have end the application. But on the internet, there is one problem. The web server does not know who you are and what you do because the HTTP address does not maintain a state. HTTP प्रोटोकॉल जो होता है ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है. स्टेटलेस मतलब जब आप किसी एक वेबसाइट का नाम एड्रेस बार में डालते हो तो आप कैसे डालते हो, http://www.suppose google.com. तो यहाँ पे आपने HTTP प्रोटोकॉल यूज किया गूगल को ओपन करने के लिए, तो एक रिक्वेस्ट जाती है गूगल सर्वर को, आपने जो भी रिक्वेस्ट मांगा है उसका रिप्लाई मिलता है. बट कौन से क्लाइंट ने कौन से टाइम पे क्या क्वेश्चन या क्या चीज को डिमांड किया था, इसका कोई भी रिकॉर्ड जो है ये HTTP प्रोटोकॉल जो है ये यूजर का स्टेट मेंटेन नहीं करता है. So to maintain the state, server uses a session where it stores the information about user. So session variables solve this problem by storing user information to be used across the multiple pages like username, favorite color, etc. By default, session variable lasts until the user closes the browser. जब तक आप browser बंद नहीं करते हो या फिर log out नहीं करते हो तो कुछ information वो carry करते जाता है. So session variable hold information about one single user and are available to all pages in one application. Now how to create a session or how to start a session? Very simple. Session को create नहीं किया जाता है, session को start किया जाता है because it is between client and server. So you have to start the session. तो session start करने के लिए very simple. You have to use session_start function. PHP में इतना ही लिखोगे तो आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है. अगेन आपको कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको लग रहा है कि कहीं पे स्टोर करनी, जो आपको अगले काफी सारे पेजेस पे उसको यूज करना है कोई वेरिएबल में किसी इंफॉर्मेशन को, तो यू हैव टू यूज अ इनबिल्ड फंक्शन, इनबिल्ड वेरिएबल ऑफ PHP. तो इनबिल्ड वेरिएबल कैसे लिखते हैं आपको याद है, जैसे हमको गेट या पोस्ट मेथड है, सो यूज $_ कैपिटल में गेट, $_ कैपिटल में पोस्ट, सो दीज आर द इनबिल्ड वेरिएबल. वैसे $_ session कैपिटल में सेशन, दिस इज एन इनबिल्ड वेरिएबल प्रोवाइडेड बाय PHP. सो $_ session लिख दिया हमने, कोई भी एक वेरिएबल का नाम यहाँ पे जो आपको चाहिए वो डाल दिया और इक्वल टू उसकी वैल्यू हमने डाल दी. तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है ये हमने सेट कर दिया है. सो सेशन का नाम है फेवरेट कलर और उसकी वैल्यू सेट कर दी है. ओके, देन नेक्स्ट इज, अगर आपको ये सेशन की वैल्यू जो है जो आपने सेट की है वो वापस चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये हमारी फाइल का नाम क्या था, session1.php. उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरी एक फाइल बनाई session2.php नाम की, वापस सेशन को स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने लिखा इको योर फेवरेट कलर इज $_ session एंड फैब कलर. अब फैब कलर हमने सेट तो किया था फर्स्ट फाइल में डेमो session1 में, बट इसकी वैल्यू हम कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, session2.php में. स्टिल इट इज गोइंग टू प्रिंट दैट वैल्यू. आप किसी तीसरे प्रोग्राम में भी इसको यूज करोगे, फोर्थ प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम में आप इसकी वैल्यू यूज कर सकते हो क्योंकि ये लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल, एक जगह पे ये क्या हो गया, स्टोर हो गया, उसकी वैल्यू सेट हो गई. अब आप कोई भी प्रोग्राम में उस मशीन में आप उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो, उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो. This is how you can set and use that value. Next is how to modify a session. Again, start the session. सेशन की वैल्यू हमने सेट कर दी. ओके, तो पहले की जो वैल्यू थी ग्रीन कलर की, अब वो क्या हो जाएगी, येलो. सो वेरी सिंपल, जब भी आपको मॉडिफाई करना है तो सेम अगेन $_ सेशन, जो भी सेशन का नाम आपने पहले डिक्लेयर किया होगा वो लिख लो और न्यू वैल्यू डाल दो. तो प्रीवियस वैल्यू रिमूव हो जाएगी, न्यू वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, आ जाएगी. जब आपको किसी सेशन की वैल्यू को प्रिंट करना है, आइदर यू कैन यूज अ इको स्टेटमेंट और यू कैन यूज अ print_r स्टेटमेंट, तो वो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी.
and you can destroy a session. See, cookie you cannot destroy. Cookies में सिर्फ एक ही function है, set cookie function. But in a session you can start a session as well as you can destroy the session, you can set a session, you can unset a session. तो डिस्ट्रॉय करना है, जैसे यहाँ पे हमने सेशन को स्टार्ट कर दिया, जब भी आपको लग रहा है कि डिस्ट्रॉय करना है तो डिस्ट्रॉय के पहले हमने सेशन को अनसेट कर दिया, तो उसमें जितने भी वैल्यूज वेरिएबल्स होंगे, सेशन में आपने जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे, जितने भी वैल्यूज उसमें स्टोर की होंगी, वो सब अनसेट हो जाती है, रिमूव हो जाती है. नाउ यू कैन destroy the session just by a simple function called as the session underscore destroy function. Okay, so this is the end of our PHP point, क्योंकि MySQL and PHP हमने already morning में देख लिया है, सेम चीज है यहाँ पे. Now in from unit 1 point we have completed, that is PHP. Now 2 points are remaining. Second point is WAP and WML, and third is AJAX. So WAP is exactly a wireless application protocol. So whenever you want to create a application, mobile application, where it's a wireless devices like your notepad, mobile, laptop, and you want to create an application, but you are not using Android. Instead of Android, you have to create a application. So how you can create that wireless application, and for that which protocol you have to use. जैसे हमको पता है कि HTTP प्रोटोकॉल हमको यूज होता है, तो ऐसे कौन से प्रोटोकॉल है जो वायरलेस के लिए यूज किए जाते हैं, एंड विच लैंग्वेज यू हैव टू यूज. लाइक HTML is a language, so likewise WML is a one language which is called as a wireless markup language, जो स्पेसिफिकली वायरलेस डिवाइसेस के लिए मार्कअप लैंग्वेज बनाई गई थी. तो WAP का इंट्रोडक्शन जो है, WAP स्टैंड्स फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. WAP is an application communication protocol. It is for communication between client and server. WAP is used to access services and information. WAP is for handheld devices such as mobile phones, notepad, laptops, etc. जिसमें आप विदाउट वायर जो भी डिवाइस यूज करते हो, तो जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं लाइक मोबाइल हो गया, नोटपैड हो गया, तो उसमें जो ब्राउजर यूज होता है दैट इज अ डिफरेंट ब्राउजर. वो ब्राउजर को हम बोलते हैं माइक्रो ब्राउजर. सो WAPs enables the creation of web application for mobile devices. आपको पता होगा कि जैसे हमारा SNJB का एक ERP एक ये बनाया हुआ है, हमने एप्लीकेशन बनाया है SNJB ERP, बट उसके भी दो वर्जन्स बनाते हैं हम लोग. एक जो लैपटॉप पे ओपन होगा, दूसरा जो मोबाइल पे ओपन होगा. तो ऐसा एप्लीकेशन जो छोटे डिवाइस को भी क्या कर सकता है, इट इज गेट लाइक you can open on a small devices also. Again WAP uses the markup language WML. तो WAP जब आपको create करना है कोई ऐसा application, so you have to use a markup language called as the WML, wireless markup language. The basic aim of WAP is to provide a web-like experience on small portable devices like mobile phones and PDAs. तो छोटे मोबाइल फोन पे आपको ब्राउजर पे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है, बट वो आपके डिवाइस के साइज के हिसाब से उसने क्या करना चाहिए, उसके कंटेंट को एडजस्ट करना चाहिए प्रॉपरली. अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल पकड़ रहे, वर्टिकल पकड़ रहे, साइज किसी की कम है मोबाइल की, किसी की ज्यादा, so depend on size, depend on horizontal and vertical, how you are just checking out the data. So likewise it is going to be modify its visual content. So WAP have its own architecture. जैसे आप लोगों ने TCP/IP प्रोटोकॉल पढ़ा है या OSI मॉडल, रेफरेंस मॉडल पढ़ा है, they have their own protocol layered structure. So likewise WAP also have their own layered structure. जैसे OSI में 7 layers होते हैं, application layer, session layer, presentation layer, network layer, likewise. वैसे ही WAP के अंदर भी कुछ अलग अलग layers होते हैं उसका आर्किटेक्चर. सो इट हैव वेरी फर्स्ट टॉप में होता है एप्लीकेशन लेयर, जिसको बोलते हैं WAE, वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट. सेकेंड लेयर होता है सेशन लेयर, वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल. ट्रांजैक्शन लेयर, वायरलेस ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल. ये यहाँ पे ये लेयर का नाम है और ब्रैकेट के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल वो यूज करते हैं वो लिखा हुआ है. द नेक्स्ट इज सिक्योरिटी लेयर. इंस्टेड ऑफ सी ट्रांजैक्शन लेयर के बाद उन्होंने ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में एक और नया लेयर ऐड किया है, सिक्योरिटी लेयर.
ताकि मोबाइल डिवाइस पे जो सिक्योरिटी आपको चाहिए. सो WTLS इज अ प्रोटोकॉल, वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी. एंड नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके, वायरलेस डेटा प्रोवाइडर्स. एंड लास्ट में एकदम जैसे आपके इसमें सबसे लास्ट में फिजिकल लेयर होता है, तो ऐसे सबसे लास्ट में जो लेयर होता है उसमें आता है जो भी मोबाइल आप यूज कर रहे हो तो उसके जो अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक GSM, CDMA, CDPD, etc. So these are the different barriers which is at the lower layer. तो टोटल लेयर कितने हैं? एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांजैक्शन लेयर, सिक्योरिटी लेयर एंड transport layer. So 5 layers are there. Now first layer is वायरलेस एप्लीकेशन इन्वायरमेंट. हम वन बाय वन जाएंगे. जैसे एप्लीकेशन लेयर का नाम है WAE, दैट इज वायरलेस एप्लीकेशन इन्वायरमेंट. इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर, वन इज एड्रेसिंग मॉडल, जिसमें जो भी आप वेबसाइट बनाते हो उस वेबसाइट को URL एंड URI प्रोवाइड किया जाता है. अगेन टू क्रिएट अ वेबसाइट इट गिव्स अ लैंग्वेज दैट इज WML, which is very similar features like HTML. Then इसमें WML script language, like your JavaScript, you can also use a WML script language to take user input, give the output to user, to validate the user input. And last is WTA, that is wireless telephony application protocol, इसमें use किया जाता है. Now we'll see the WML जो इस particular first layer पे use होता है उसको थोड़ा डिटेल में we'll just check out. So wireless markup language, this is defined in the WAP specification and it is very similar like your HTML. It is also use the tags and it is written in a plain text format. WML, formerly called as HDML, that is handheld devices markup language, and it allows the text portion of web pages to be presented on cellular, telephone and personal assistant, digital assistant, that is wireless मोबाइल और फॉर वायरलेस एक्सेस. तो वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज जो है इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. सो इट फॉलोज अ स्ट्रक्चर. तो इसमें जैसे आप HTML में दो स्ट्रक्चर होता है, हेड एंड बॉडी. सो लाइकवाइज WML में स्ट्रक्चर होता है डेक एंड कार्ड. तो छोटे 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 लाइक कार्ड्स में कोड लिखा जाता है और जब कार्ड्स को आप एक साथ ग्रुप करते हो तो उसको डेक बोला जाता है. सो इट्स वेरी लाइक योर डेस्क. हमें छोटा सा, अगर हमने डेस्क लिया और डेस्क के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप रखते हो, ओके, तो वैसे कार्ड मतलब छोटे छोटे कोड, उन सबको एक साथ आप ग्रुप करके एक जगह पे रखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं. सो WML डेक इज सिमिलर टू द HTML पेज. तो एक जैसे HTML का पेज होता है वैसे WML का एक डेक होता है जिसमें portion of codes you can just like write down and you can navigate from one portion to another portion. जैसे HTML में हम div tag काफी बार यूज करते हैं वेब पेज को डिवाइड करने के लिए. Again it have their own tags. So बहुत सिमिलर टैग है. आप जैसे HTML का देखोगे, जैसे P tag is used for paragraph tag, मतलब जब आपको टेक्स्ट डेटा चाहिए. हाइपरलिंक के लिए जैसे HTML में हम AHREF यूज करते हैं, इसमें भी सेम टैग है. इसमें और एक नया टैग उन्होंने ऐड किया, लाइक डू टैग व्हेन यू वांट टू लाइक यूज सम एक्शन. जैसे हम जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करते हैं तो बटन पे हम क्या लिखते हैं? ऑन क्लिक मेथड लिखते हैं. तो जब आपको ऐसा कोई एक्शन लिखना है तो इंस्टेड ऑफ ऑन क्लिक वी विल यूज लाइक टैग एज अ डू टैग. ओके, अगर आपको वन WML पेज से दूसरे WML पेज पे जाना है तो इंस्टेड ऑफ एंकर टैग यू विल यूज गो एंड देन HREF. देन नेक्स्ट यू कैन आल्सो यूज अ ट्रिगर इवेंट. ट्रिगर इवेंट मतलब क्या? एक टाइमर आप सेट करते हो और सपोज ऐसे चाहिए कि आफ्टर 10 मिनट दिस शुड हैपन ऑटोमेटिकली, यानी 10 मिनट के बाद ये पेज के बाद दूसरा पेज ऑटोमेटिक ओपन हो जाना चाहिए या कोई नई इमेज पॉपअप होनी चाहिए. सो यू कैन सेट अ टाइमर. अगेन इनपुट के जितने भी टाइप आप HTML में यूज करते हो, जैसे यूजर से इनपुट लेने के लिए टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ऑल द थिंग्स यू कैन यूज यूजिंग अ इनपुट टैग.
प्रीवियस पेज पे जाना है तो प्रीवियस एक टैग उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है. यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर अ वेरिएबल. सी इन योर HTML यू कैन नॉट डिक्लेयर अ वेरिएबल, यू रिक्वायर जावास्क्रिप्ट टू डिक्लेयर द वेरिएबल. लेकिन इसने क्या किया है कि HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों का जो पावर है वो एक साथ WML में डाल दिया है, तो जिसमें आप टैग यूज कर सकते हैं एज वेल एज आप वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं. सो यू कैन यूज अ डॉलर सिंबल and in bracket you have to write down the name of variable. Again for image the same tag is there, imgsrc. You can set a variable values using post field. तुम्हारा ड्रॉप डाउन लिस्ट आप यूज कर सकते हो यूजिंग सेलेक्ट एन ऑप्शन. सो इसके अलावा भी बहुत सारे टैग्स है. आई हैव जस्ट पुटेड सम ऑफ द टैग दैट यू कैन यूज विद अ WML. इसमें कोड जनरली कैसा लिखा जाता है कि यू हैव टू स्टार्ट विद XML वर्जन 1.0. डॉक टाइप इज WML. यू हैव टू, जैसे हम HTML एंड /HTML लिखते हैं वैसे WML/WML. इसमें जैसे हम वहाँ पे div टैग लिखते हैं, div टैग की बजाय आप यहाँ पे लिखोगे कार्ड. सो दिस इज द वन पोर्शन ऑफ योर वेब पेज, दिस इज अनदर पोर्शन ऑफ वेब पेज. और उस पोर्शन में आपको जो भी इमेज दिखाना है, टेक्स्ट दिखाना है, सो वो टैग यूज करके आप क्या करते हो, कोड लिख सकते हो. तो इट्स अ वेरी सिंपल वन. अब इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है. दे नेवर आस्क टू राइट डाउन अ कोड using a WML. So there are two mainly question on a WML. One is write down a short note on WML और second is write down a short note on WAP protocol. तो WAP प्रोटोकॉल के बारे में तो पूछा जाएगा या WML के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा. तो शॉर्ट नोट में एटलीस्ट अपने कौन से टैग्स यूज होते हैं, किसके लिए ये लैंग्वेज यूज होती है, और एक छोटा सा कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो. देन नेक्स्ट दिस इज हाँ, जो फर्स्ट हम लेयर देख रहे हैं लाइक वैप लेयर, वैप एप्लीकेशन लेयर. तो जनरली इसके कुछ एप्लीकेशन है, जैसे वैप प्रोटोकॉल के एप्लीकेशन कहाँ पे यू कैन यूज इट इन अ बैंकिंग. जैसे आपको मोबाइल पे बैंकिंग का कोई ऐप ओपन करना है, फॉर शॉपिंग वेबसाइट, फॉर फाइनेंस, फॉर टिकटिंग, फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर वेदर, फॉर ई मैसेजिंग. सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ वैप. Okay, so this is all about how like the WAP works और उसमें WML का स्ट्रक्चर कैसे वर्क होता है. इसमें जो हमारा थोड़ा पार्ट रह गया वो खाली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे हमने WAE यानी एप्लीकेशन लेयर डिटेल में देखा, जिसमें हमने देखा कि एप्लीकेशन लेयर जो है उसमें हमने WML लैंग्वेज यूज करके एप्लीकेशन आप लोग क्रिएट कर सकते हो. Second layer is a session layer. Its working is very similar to your OSI session layer, जिसमें client and server के बीच में एक session create करने का, token management करने का, and who will send a data next, client or like server. So all these session management related things are done by session layer. Then next is a transaction layer. The transaction between, as if you are using a finance application or a banking application, so whatever the transaction you have started between client and server, तो वो transaction अगर एक बार start हो गया है तो उसको पूरा complete commit होने तक उसको check करने का, अगर commit नहीं होता है तो उसको roll back करने का. So transaction properly initiate हुआ है या नहीं, एंड ट्रांजैक्शन प्रॉपरली कमिट हुआ है कि नहीं, ये सब चेक करने का काम ट्रांजैक्शन लेयर किया जाता है. And within this transaction, when the transaction and data is sent and received between client and server, if there is some malicious practices happening, so that security is to be checked by the security layer. So whenever data is going from session layer to transport layer and from transport layer to transaction layer to transport layer, इन दोनों के बीच में एक लेयर आता है सिक्योरिटी लेयर, जिसका काम क्या है कि वॉट एवर डेटा यू आर सेंडिंग इट इज जस्ट एडिंग अ सिक्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं इंक्रिप्शन. तो आपका डेटा जो है यहाँ पे इंक्रिप्ट किया जाता है, जैसे MD5 इज एन एल्गोरिथम. अलग अलग एल्गोरिथम्स यहाँ पे यूज करके आपके डेटा को इंक्रिप्ट करके और फिर वो डेटा दिया जाता है लास्ट में ट्रांसपोर्ट लेयर को. तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि जो डेटा है अगर उसकी साइज बड़ी है तो उसको स्मॉल पार्ट्स में, सेगमेंट में उसको डिवाइड किया जाता है, एंड दैट स्मॉलर पार्ट्स आर एक्चुअली सेंड थ्रू दिस बेरर्स टू द डिफरेंट डिवाइसेस. मतलब क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट की तरफ ये डेटा क्या होता है, सेंड या रिसीव किया जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर WAP प्रोटोकॉल एंड WML. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अजाक्स. ओके, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा.
अजैक्स जो है हम कल थोड़ा फ्रेश मूड में देखेंगे इसका कोड और ये। तो just anyone just take the screenshot for today's lecture and just send me. Do you have any questions, so you can ask. If you have any question, you can ask. We will see the Ajax topic. मॅम Yeah, yes. एकदा ते कुकीज रन करून दाखवतो का कोड? चालेल ना, करू शकतो आपण. कुकीजचं पण करू शकतो किंवा आपण सेशनचं पण करू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. आपण दोघं बघूया, आपण सेशनचं पण बघू आणि कुकीजचं पण बघूया. ठीक है, तो सबसे पहले हम या दोनों चीजें करके देखते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले एक सेशन का कोड हमने ले लिया. a1.php से हमने सेव किया इसको, और एक फाइल लेते हैं हम. a2.php में क्या कोड चाहिए हमको, सिर्फ इको करना है उसको. ओके, देखो क्या किया, समझ में आया क्या? पहले इसमें हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट इसमें a1.php में सेशन को स्टार्ट किया और एक फैब कलर में हमने ग्रीन वैल्यू सेव किया. नाउ सेकंड हमने एक फाइल लिया है जिसमें वापस सेशन को स्टार्ट किया, और जो वैल्यू हमने वहां पे सेट की है वो वैल्यू हम दूसरे प्रोग्राम में ट्राई कर रहे कि वो रिट्रीव हो रही कि नहीं. अगर यहाँ पे रिट्रीव हो गई मतलब कि हमारा सेशन प्रॉपर्ली क्रिएट हो गया है. तो इसको हम सेव करते हैं एंड फाइल का नाम दिया हमने सपोज a2.php. यहाँ पे पहले एग्जाम को स्टार्ट करेंगे. फाइल का नाम है हमारा a1.php. ओके, a1.php में हमने खाली सेशन की जो वैल्यू है वो सेट की थी. ओके, जिसमें हमने वैल्यू जो है ग्रीन कलर डाला था. अब हम इसको डिलीट करके a2 सेट करते हैं. तो a2 में अगर आप देखोगे हमने कोड क्या लिखा था, खाली फेवरेट कलर इज, और हमने सेशन की वैल्यूज को रीड करके उसकी वैल्यू प्रिंट की थी. तो उसने ऑटोमेटिकली बराबर क्या लिया, इसने ग्रीन कलर यहाँ से उठा लिया है. ओके, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, मतलब क्या बोल रही, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को स्टूडेंट्स, क्या हुआ है? यस मैम. हाँ, दो फाइल, मतलब देखो अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल है जो आपको ऐसा सेट करना है कि उसकी वैल्यू अगर आपने सेट की, तो आप कोई भी प्रोग्राम है आपका पीएचपी का, तो उस प्रोग्राम में आपको वो वैल्यू क्या करनी है, रीड करनी है. वहां पे आप उसको लाइक ग्लोबल टू ग्लोबल वेरिएबल, प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल यानी क्या होता है कि उस प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन में आप उसको यूज कर सकते हो, बट आप किसी दूसरे प्रोग्राम में उसको रीड नहीं कर सकते. सेशन इज अ वेरी ग्लोबल काइंड ऑफ वेरिएबल जिसको आप एक प्रोग्राम से दूसरे, दूसरे प्रोग्राम से तीसरे, एन नंबर ऑफ प्रोग्राम तक उसकी वैल्यूज को आप पास ऑन कर सकते हो, यूज कर सकते हो. ओके, सो दैट इज हाउ द सेशन. ओके, अभी हम लोग ये समझ में आए तो फिर मैं जाती हूँ कुकीज की तरफ. इसमें कुछ है क्वेरी? नो मैम. ओके, अभी हम जाते हैं कुकीज के लिए.
कुकी का नाम हम सपोज C1 कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी हमको क्या प्रिंट करना पड़ेगा, C1 I have to use. ये डबल कोट्स चलेंगे कि नहीं यहाँ पे, no I have to change the double quotes. यहाँ पे हम इसको भी रन करते हैं। ओके, कुकी सेट नहीं हुआ है, व्हाई इट इज नॉट। मॅम ते टॅग एड नाही केले, कुठे रे, बॉडी टॅग आणि HTML. पण त्याच्याने नाही आला पाहिजे, करून बघू आपण। एक बार चेक करो कोड बराबर है क्या। यहाँ पे सेट कुकीज C1 लिया है, वैल्यू सेट किया, ओके। इफ इट सेट कुकीज C1, तो कुकीज C1 की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे ली, यहाँ पे हमने